morning, students. How are you all? I hope you are good. As you all know that I was explaining the very first book of class 11, Hornbill. First chapter of this book. First chapter of this book. And what was that? It was the portrait of a lady. It was the portrait of a lady written by Khushwant Singh. As we have studied about the grandmother of Khushwant Singh, about the grandfather of Khushwant Singh, and it's all about the grandmother of Khushwant Singh and how she was and how was the relation of grandmother with Khushwant Singh when he was in village and when he moved to the city, the bond of love, the connection between these two people. Now let us go ahead. I think I have to teach from the thought was almost revolting. This is the paragraph from where I have to teach. Yes. So the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. The thought was almost revolting. What does it mean? Actually, in this paragraph, Khushwant Singh is talking about it was hard to believe that her grandmother was used to be a pretty woman and she would have a husband. This thought was really strange. It was hard to believe about my grandmother. She often told us of the games she used to play as a child. And in this line, Khushwant Singh ये कह रहे हैं कि she often told us of the games she used to play as a child. जब मेरी दादी माँ एक छोटी बच्ची थी तो वो किस तरह के खेल खेला करती थी अक्सर मुझे बताया करती थी. That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet. और जिस तरह का वो गेम खेला करती थी मेरी दादी माँ कि वो डिस्क्राइब करती है, वो बताती हैं, मैं सुन बड़ा स्ट्रेंज फील करता हूँ. Khushwant Singh कह रहे हैं कि मैं स्वयं को बड़ा स्ट्रेंज फील करता हूँ. एंड अनडिग्निफाइड मीन्स बेसलेस. इट वॉज नॉट डिग्निफाइड, बेसलेस. अब वो जो स्टोरी थी उसकी ग्रैंड मदर Khushwant Singh को सुनाया करते थे. और हम इसे परियों की कहानी से इसकी कंपैरिजन करते थे. देवताओं की कहानियां, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, देवताओं की कहानियां. इसकी जो हमारी दादी माँ जो हमें स्टोरीज वगैरह सुनाया करती थी उसकी कंपैरिजन हम किससे करते थे? देवताओं की कहानियों से कंपैरिजन हम करते थे. हमें उस तरह से वो कहानियां लगती थी जो हमें बताया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. यहाँ पर Khushwant Singh बता रहे हैं how was the appearance of my grandmother. She had always been short. She was small in size. मतलब वो छोटी थी. And fat और थोड़ी मोटी थी. And slightly bent और थोड़ी सी झुकी हुआ करती थी. Like this. जैसे क्या नाम है
ओल्ड पर्सन जो होते हैं थोड़ा बेंड होकर थोड़ा चलते हैं, स्टूप होकर थोड़ा चलते हैं, लाइक दिस. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Whenever you see a old woman or a old man, you will see the wrinkles all over his or her face. हर जगह पर अगर आप किसी बूढ़े औरत या बूढ़े आदमी को आप देखेंगे तो इनमें अप्रॉक्सीमेट वो 70-80 ईयर्स ओल्ड होगा, तो उसके फेस पर रिंकल्स होंगी, झुर्रियां होंगी, क्रिस क्रॉस लाइंस पास कर रही होंगी हर जगह पर. सेम उसी तरीके से मदर ये थी, तो उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स पड़ी हुई. No, we were certain she had always been as we had known her. यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि जब से मैंने अपनी दादी माँ को देखा है वो वैसे ही अभी तक मुझे नजर आ रही. मतलब the age of my grandmother was constant. 10 साल 15 साल 20 साल पहले जैसे मेरी दादी माँ दिख रही थी, अभी भी वो वैसे ही दिख रही हैं. There is no change in the appearance of my grandmother. Old, so terribly old that she could not have grown older. वो इतनी बूढ़ी मुझे दिख रही थी, इतनी बूढ़ी दिख रही थी कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो हो भी नहीं सकती. And had stayed at the same age for 20 years. मानो वो 20 सालों से उसी एज पर वो रुक गई. She could never have been pretty. She could never have been pretty. राइटिंग यहाँ पर अपनी दादी माँ को कंसीडर करते हैं वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी. She was always beautiful, but she was always beautiful. लेकिन वो beautiful थी. What does it mean? यहाँ देखिए, एक्चुअली एक तरफ राइटर कह रहे हैं कि वो प्रीटी नहीं थी और एक तरफ राइटर कह रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल थे. Now, in this line, the writer is talking about the outer and inner beauty. Mean to say, the outer beauty of my grandmother was pretty, but the inner beauty of my grandmother was beautiful. Actually, she was a religious lady, and she was very kind to all human beings. Not only all human beings, but to all the creatures created by God. She was very religious, very kindful, very helpful nature. She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hovered out. What does it mean? Hovered about. वो walk about. यहाँ पर चलने की बात करता है, थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलना. Just because of her age, अपनी उम्र की वजह से वो लड़खड़ा के चलती थी. तो स्ट्रेट होके नहीं चलती थी, इस तरह से स्ट्रेट होके वो नहीं चलती थी, बल्कि वो हॉबल करती थी और अपना और वो एक वाइट, यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक वाइट साड़ी पहनी हुआ करती थी, स्पॉटलेस हुआ करता था, फ्री फ्रॉम स्पॉट, धब्बों से एकदम साफ शफाफ हुआ करता था, धब्बों से मुक्त हुआ करता था. और अपना एक हाथ वो यहाँ पर इस तरह से रखकर चलती थी, पूरे घर में चक्कर लगाती थी, चलती रहती थी, पूरे घर में चक्कर लगाती थी. और एक हाथ से अपनी मालाएं लेकर वो ईश्वर का नाम जपा करती थी, ईश्वर का नाम लिया करती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moving inaudible prayer. और उनके जो लॉक्स में होता है लट, जिस तरह से यहाँ निकला रहता है गर्ल्स के, उसी को लॉक्स कहते हैं. तो उनकी जो लॉक्स हुआ करती थी वो सिल्वर हो चुकी थी. अब एज यू ऑल नो डैट, वो इतनी बूढ़ी थी कि उनकी जो सिल्वर मीन्स यहाँ मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट, उनकी जो लट हुआ करती थी वो एकदम सफेद हो गई और वो बिखरी हुई. अनटिडेंटली यहाँ पर
गंदी गंदी दिख रही थी और बिखरी हुई थी। स्कैटर्ड मिस होता है स्प्रेड, बिखरा हुआ, बिखरी हुई थी। और हर पेल, और उनका जो चेहरा था जो पीला पड़ गया था ड्यू टू हर एज, उम्र की वजह से। पकड़ फेस, चेहरा एकदम क्या नाम है, ग्रोन अप पर्सन का जो फेस होता है, जो एक क्या नाम है ओल्ड पर्सन का जो फेस होता है। पकड़ फेस यहाँ पर आप ये समझिएगा कि द रिंकल्स वर ऑल ओवर हर फेस, द रिंकल्स वर ऑल ओवर हर फेस, उनके चेहरे पर पूरा क्या नाम है झुर्रियां पड़ गई थी। इसीलिए यहाँ पर राइटर ने पकड़ वर्ड का यूज किया है, क्योंकि चेहरे पर हर जगह पर झुर्रियां नजर आ रही थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनकी जो लिप्स थी वो अपने लिप्स का यूज करके ईश्वर का नाम ले रही थी, ईश्वर का नाम कर रही थी। इस तरीके से वो घर में पूरा चक्कर लगा दी। क्या मैंने बताया कि वो पूरे घर में चक्कर लगाया करती थी। एक हाथ क्या नाम है अपने वेस्ट पर रखकर हल्का सा झुक कर वो पूरे घर में चला करती थी और ईश्वर का नाम जपा करती थी, ईश्वर का नाम लिया करती थी। उनके लिप्स मतलब आप देखोगे तो चलते रहते थे, मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर देखिए इनर ब्यूटी की बात कर रहा है कि इसीलिए क्या नाम है राइटर कह रहा है कि वो चाहती वो खूबसूरत, स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पर। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. और वो किस तरह से देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है। इस लाइन में राइटर कंपैरिजन कर रहा है अपनी ग्रैंडमदर का। एक माउंटेन, एक पहाड़ है, और एक लैंडस्केप में होता है साइट, दृश्य। एक पहाड़ का दृश्य जो हम लोग देखते हैं, खासतौर से अगर हम विंटर सीजन में देखेंगे, विंटर सीजन में अगर हम देखते हैं माउंटेन को, माउंटेन पे क्या होता है, ऑल द स्नो वर कवरिंग द होल पार्ट ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन की जो पूरा पार्ट होता है उसे क्या करते हैं, स्नो जो होती है वो उसको कवर किए रहती है, ढके रहती है, और वो मंजर, वो लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेरीन, बहुत ही पीसफुल नजर आता है। इन द सेम वे वो अपने ग्रैंड मदर को कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बहुत ही पीसफुल नेचर की और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर की लेडी थी। उनको देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता कि कभी वो गुस्सा करती है, कभी वो किसी बात से नाराज हो जाती है। बहुत ही पीसफुल नेचर की वो लेडी थी, calm and dignified। इस पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कल मैं फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि nobody is going to change you until or unless you change yourself। Your future, your career is in your hand। आपका जो फ्यूचर जो करियर है वो आपके हाथ में, आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टडी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। The choice you take will make। जो भी चॉइस आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आप बनोगे आगे चल। इसीलिए थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या करिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका मतलब खुद की तलाश। अभी घर में बैठकर सोचिए कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि माइंड को आपको माइंड को फीड कराना है, और माइंड आपका इन्फिनिट जीवी का है। जो भी चीज आप उसको फीड कराओगे वो ले लेगा। आप उसे अच्छी चीजों से फीड कराना चाहते हो या बुरी चीजों से उसको फीड कराना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ये मत देखिएगा मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, टीचर्स मुझे देख रहे हैं, सोसाइटी मुझे देख रही है। नहीं, कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ही बता रहा हूँ, आपको खुद अपने लिए कुछ करना होगा।
द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक यू बाय योरसेल्फ। पहला कदम आपको उठाना होगा, देन यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।